Good evening, everyone. Myself, Vandana, the National Wiki Youth Representative, would like to welcome all of you on behalf of Women for Water or Blue Lips. This initiative has been taken up by EDRC Ahmedabad with support of Wiki Water Resource Council and in collaboration with Wednesdays for Water and our media partners Counterview. I'm joined today with Mansi, who's our National President for Wiki Water Resource Council. We are also glad to start this Blue Lips initiative. I would like to take a moment here to establish that this initiative is going to cater to a very important and relevant aspect, which is sharing of worries and wisdom by the women in water. Often we hear their stories here and there, but I think this elongated conversation in a very candid format will give us very closer and relatable meaning into the experiences that these speakers would have had, and one can experience a masterclass kind of a experience after listening to these speakers. Today, we are here to listen and know more about Ms. Anita Nautiyal. Welcome, ma'am, to our session. I'll just take a moment to briefly introduce to you for the benefit of our audience and viewers at large. Anita ji is a passionate educator and has undertaken various roles of leadership, mentorship, teaching, and designing curriculum for school kids. Currently, she's running an informal after-school called Ananda Vatika Green Gurukula, AVGG, beyond the walls and ahead of the syllabi. I think we will take this discussion forward. Welcome, Anita ji, on board with us. And I would like to request you to share a little bit more about yourself, a little bit in terms of how did you start your work in the area of water. Anita ji, you are on. Thank you very much. Anita ji, can you just briefly introduce yourself to the audience for larger understanding and also take us through the journey that you've tread so far in water sector? Okay. I can be bilingual or it has to be only in English? No, you can be absolutely bilingual. Okay. No problem. Thank you. So मेरा नाम अनीता नौटियाल है और मैं उत्तराखंड से हूँ और मैंने अपनी जो जीवन यात्रा है वो एक टीचर के तौर पे शुरू की थी और 2013 में फिर मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, ग्रीन पार्टी, और उसके बाद 2013 से अभी तक मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और ग्रीन पार्टी की को फाउंडर हूँ और एशिया पैसिफिक ग्रीन फेडरेशन में को कन्वीनर का रोल भी निभाया है, कन्वीनर का रोल भी निभाया है, ट्रेजरर का भी है, विमेंस नेटवर्क कन्वीनर, ग्लोबल ग्रीन्स विमेंस नेटवर्क जो है वहाँ के भी कन्वीनर रही हूँ और अभी जो है एक आफ्टर स्कूल पहाड़ के बच्चों के लिए जो रिमोट एरियाज में है जहाँ पर हमारा एजुकेशन जो है बच्चों को जो है नहीं मिलता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जो है एक स्कूल चलाते हैं। फिलहाल अभी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हमने अभी उसको जो है अभी पैसिव मोड में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट करने की कोशिश की तब कोरोना की वेव आ जाती थी, तो फिलहाल अभी जो है स्लो मोड में है, लेकिन फिर से वो काम शुरू हुआ। Okay. A very interesting thing that you said, that you've led many coalitions, many networks. Can you elaborate a little bit more as to when did you really get started about building this network, and why did you really feel this need for building a network and coalitions, since you have created many? Why did you feel the need for this? Actually, your voice was breaking and I couldn't get the question exactly. Like which women's network you're talking about, or you're talking about the federation? I was asking in general
that what inspired you to create so many networks, be it for women, be it for in general green networks. You have established a political party also. So how did this inspiration come from? Yeah, so मैंने यहाँ पर आई थिंक 2011-12 में डोबरा चांठी पुल का जो है आंदोलन में भाग लिया था और एक तरह से उसके भी शुरुआती दौर में थी। ये महसूस हुआ था कि जो टिहरी डैम के जो नदी के उस पार के लोग थे उनके लिए कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। अब आप समझदारी देखिए, जो डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि वो डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उस एरिया को वो झील बनाने वाले हैं, लेकिन उनको ये क्लिक नहीं होता है कि ये लोग जो नदी के उस पार रहते हैं उनका जो वो है लेंथ है ब्रिज का, वो और बड़ा होने वाला है और डीप होने वाला है। पहले लोग नाव से जाते थे, आसानी से जाते थे, लेकिन झील में बहुत आसानी नहीं है, दलदल बढ़ जाता है, पानी का लेवल घट जाता है। उन लोगों ने कोई ब्रिज नहीं बनाया और जो एक ताबड़तोड़ बनाया तो वो जो है लाइट वेट व्हीकल्स के लिए बनाया, जिसमें जो है बहुत छोटे ट्रक जो है जा सकते थे या छोटी गाड़ियां जा सकते थे। अब आप इमेजिन करिए कि वो जो पुल है, अगर छोटी गाड़ियां जाएंगी तो वहां का जो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स का, आइटम्स का, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो खैर वो आंदोलन में जब जुड़ी तो ये समझ में आया कि पॉलिटिकल विल नहीं है काम करने की। और उसके बाद जब डोबरा चांठी पुल को बनाने की बात हुई 2010 में, तो उसका बजट 100 करोड़ था, लेकिन अभी शायद 1000-1200 करोड़ को पार कर गए। इनिशियली लोग वहां पे खनन में जुड़े थे, ब्रिज नहीं बने इसके लिए जुटे थे, ताकि खनन करने से लोगों को ये लगता था कि ब्रिज पे काम चल रहा है, लेकिन ब्रिज नहीं बनने देते थे। तो ये सब जब देखा और जब ग्रीन पॉलिटिक्स को समझा तो समझ में आया कि ग्रीन पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है जो हमें इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। हमें मालूम है 100% तो कहीं पे नहीं, क्योंकि वही लोग तो कुछ लोग आएंगे, तो 100% तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस तरीके से जो है जर्नी शुरू हुई। और जब मैं गांव जाती थी, विजिट करती थी, तो मुझे बचपन से जाती थी, मुझे ये रियलाइज होता था कि जो एजुकेशन हमें मिली, हम लोग गुजरात में ज्यादातर रहे और अन्य स्टेट्स में भी रहे हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो एजुकेशन हमारे पास में है वो गांव के बच्चों के पास में नहीं है। और इसलिए मैंने जो है वो आफ्टर स्कूल की एक परिकल्पना की, क्योंकि जब हम जो है रेगुलर स्कूल करते हैं, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रही हूँ और डीन ऑफ एकेडमिक्स, तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक फॉर्मेट आता है एजुकेशन बोर्ड से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और हमें वो फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स को एक जो सिलेबस दिया है वो बेचारे वो सिलेबस को पूरा भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे जो हैं वो चैप्टर्स छूट जाते हैं, और वो जो एक्चुअली हम बच्चों को देना चाहते हैं वो नहीं मिलता। लेकिन ये जो आफ्टर स्कूल था, इसकी वजह से हम बच्चों को वो दे पा रहे थे जो हमारे टीचर्स के पास जो स्किल्स थी, जो नॉलेज थी, और वो देना चाहते थे। या कभी बच्चों के पास सवाल होते थे तो हम उनको जो है उन सवालों को कैटर करते थे। तो इस तरीके से जो है वो आफ्टर स्कूल चला और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत ही अच्छे। Very good to hear this, because Anita ji, I think rarely do people recognize these kinds of critical gap. ऐसे गैप की आप किस तरीके से इतनी सारे पॉलिटिकल नेटवर्क्स और इन सबको समझते हैं गहराइयों से। हमारे साथ मानसी है और मानसी भी इन गहराइयों को बहुत अच्छे से समझती है। तो आई विल रिक्वेस्ट मानसी टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। मानसी, कैन यू जॉइन अस प्लीज? Thanks Vandana, thanks for wonderful start, and Anita, आपका जो जर्नी है मैं तो काफी वाकिफ हूँ, हम साथ साथ चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंटली जो तहरीर डैम का जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से लेके you ended up doing a political activism, I will say, not literally party per se, but more political activism.
and then bringing yourself into the Asia level and global platform of green politics, because we have seen in many parts of the world how green politics has actually influenced even turning governments, for example, in Australia, you know. And now when you are really taking charge of many things at Asia level and also very well networked across globally, how do you see the value of, and you also know that most of the Green Party activists are also women, by the way, and that was for me very surprising and very, very overwhelming when I came to the platform to even talk about women in politics, because I'm aware that you have a strong belief system that women have to enter the politics if we want to change the political narrative, right? So I'm aware you want to present, so I will leave it to you whether you want to have a conversation or you want to do the presentation, because your presentation is quite fulfilling. So I leave it to you. How do you want to go from here? Okay, so okay. So yes, so yeah, why environment is not electoral issue in India? So इस पे बात करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास, हमारे देश में जो वाटर स्कैर्सिटी का जो प्रॉब्लम आया था चेन्नई में 2019 में, और उसके बाद फ्लड्स हैं अभी आसाम में, और हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो बिल्कुल भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है फ्लड्स को कवर करने की, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अपना जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन देश में अगर कहीं गड़बड़ है एनवायरनमेंट को लेके तो वो बिल्कुल नहीं कवर किया जाता है। और फिर जो ड्रॉट है, और इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है जो विमेन इन वाटर का, जो मैं हमेशा से समझती हूँ और देखती आई हूँ कि जब भी वाटर क्राइसिस होता है तो उसका इम्पैक्ट विमेन पे पड़ता है, क्योंकि विमेन ही रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर को जो है लेके आने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, घर में लाना है। और उस पर आप देखिए कि यहाँ तक कि वाटर वाइव्स भी हुई हैं हमारे देश में, ऐसा कल्चर भी है कि शादी करके महिलाओं को लेके आया जाता है ताकि वो पानी लेके आए इतने दूर दूर से। तो ये जो है ये भी एक एस्पेक्ट है हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज का। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ग्लेशियर्स श्रिंक हो रहे हैं, और यहाँ पे जो तस्वीर है हिंदू कुश जो है काराकोरम रेंज की है, और देखेंगे कि जो है ग्लेशियर श्रिंक हो रखा है। और उसके बाद दिल्ली का हाल आप देख सकते हैं, दिल्ली का हाल जानते हैं कि 4 सालों में दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है, इतना पोल्यूशन है। लेकिन दूसरे देश होंगे तो वो वहाँ सरकार गिर जाएगी, लेकिन हमारे देश में कोई बॉदर ही नहीं करता है, कोई केयर ही नहीं करता है कि पोल्यूशन जो है इस हद तक का है कि सांस लेने में दिक्कत है। लोगों ने ऑल्टरनेट जो है उनका जो ऑप्शन है कि घर देहरादून में बनाएंगे, लेकिन वहां पर जो है आम आदमी सरकार का जो है कोई विरोध नहीं कर रहा है। और जो लोगों के गुड बुक्स में है आम आदमी पार्टी, तो वो भी जो है अन्य पार्टीज के जैसे ही वो खेल खेल रहे हैं हमारे इमोशंस के साथ में, और हमें जो है बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कोई उनका भी काम बढ़िया नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि रिवर पोल्यूशन, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर गंगा, और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सीवेज जो है जनरेट होता है वो ब्लू है, और जो इसका ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो रेड है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गंगा की क्या हालत है। और मेरे दिमाग में एक बात और आई कि मेरे घर में जो पीने का पानी होगा, क्या मैं उसमें अपने सीवेज का पानी डालूंगी? कतई नहीं। तो कैसे जो है ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मैनेज करते हैं, वो किस तरीके से ये होने देते हैं। यहाँ तक कि नदियों के आसपास हम जमीन के अंदर भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जो है इन्फ्लेट होके जो है वहां पे नदियों में चले जाएंगे। तो ये इतनी बुरी हालत है, और इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई विषय नहीं है ये चर्चा का। तो इसका कारण क्या है कि जो ये पार्टीज हैं
वो कभी भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एनवायरमेंटल इशू को लेके स्ट्रांगली कभी नहीं आती हैं, बहुत एक छोटा सा लाइन में उसको खत्म कर देती हैं। अच्छा, वो तो खत्म किया, उसके बाद क्या करती हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जो नेशनल गंगा काउंसिल के जो हेड हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने इसका जो गठन है 2016 में किया था। लेकिन अगर हम एक एनजीओ है संकट मोचन वाराणसी का, अगर हम उसकी जो है मॉनिटरिंग देखें तो उन्होंने ये कहा कि 1986 से वाटर क्वालिटी गिरती ही चली जा रही है, और आखिरी अभी लास्ट 3 इयर्स में तो बहुत ज्यादा गिरी है। और हमें सबको मालूम है कि ये जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, इस पे कितना कितना फंड सरकार का गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गिरी है क्वालिटी। तो इसका मतलब फंड्स कहीं और जाते हैं, नाम किसी और चीज का होता है। तो ये हालत है हमारे 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 पॉलिटिकल पार्टीज की। सॉरी। और इस पर यह है कि हमारी जो 29 मेंबर्स की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है दिल्ली अर्बन दिल्ली डेवलपमेंट एनसीआर की, तो उसमें जो राइजिंग इश्यू डिस्कस करना था एयर पोल्यूशन का लेके, और वहां पर जो गौतम गंभीर जैसे जो ईस्ट दिल्ली को पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो मौजूद नहीं थे, और उनकी वजह से क्योंकि कोरम नहीं था मीटिंग कैंसिल हुई, और वो इंदौर में कहीं जो है पानी पूरी या कुछ भेलपुरी खा रहे थे, और उन्होंने अपना सेल्फी भी डाला था। तो ये स्थिति है हमारी, और हम ये देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कितनी खतरनाक है। ये मैंने यहाँ पर जो स्टैटिक्स हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल भी इस चीज को लेके कोई चिंता नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे ग्रीन पॉलिटिक्स की बात इसलिए करूंगी कि ये जो ग्रीन पार्टीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आई 1973 में, जब वर्कर्स ने जो है किसी प्रोजेक्ट पे काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इकोलॉजी को डैमेज होगा तो हम वो काम नहीं करेंगे। और वही जो ग्रुप था वो आगे चल के जो है ग्रीन पार्टी बना, जैसे कि अभी मानसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत स्ट्रांगली ग्रीन पार्टी आई है उनके अपर हाउस में और लोअर हाउस में। और उन्होंने ये बताया, मेरी जब ऑस्ट्रेलियन ग्रीन से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि अब हम किसी डिसीजन को ब्लॉक कर सकते हैं। कोई राइट विंग अगर डिसीजन लेके आते हैं, गलत लेके आते हैं, तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब हमारे पास उतनी पावर है। फिर उसके बाद में यही आइडियोलॉजी को रेप्लिकेट किया जर्मनी ने, और वो महिला थी जिन्होंने ये लेकिन मैं जब इसको गूगल पे ढूंढ रही थी ना तो उस महिला का नाम नहीं था। तो ये बड़ी विडंबना है कि महिलाओं का नाम जो है ना वो विकिपीडिया में भी गायब कर देते हैं। तो 1980 में द ग्रोइंस, जो उनकी लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज में द ग्रोइंस के नाम से हुआ, और इसको द फिर ग्रीन्स के नाम से 1980 में स्टैब्लिश किया। सो थोड़ा सा और बताऊंगी कि हम ये जितने भी ग्रीन पार्टीज बनी ये मूवमेंट से बनी दुनिया भर में। पता नहीं हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कोई भी आंदोलन जो है वो कल्मिनेट नहीं हुआ ग्रीन पार्टी में। क्यों नहीं हुआ ये मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी है, सरकारें बड़े अलग अलग तरीके से आंदोलन को तोड़ती हैं, अपने लोगों को भेजती हैं, पर खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। और ये जो चिपको आंदोलन है, जहां से मैं आती हूँ उत्तराखंड से, चिपको आंदोलन जो गौरा देवी ने जो है इनिशिएट किया था ये आंदोलन को, लेकिन ज्यादातर लोग जो है किसी और का नाम जानते हैं क्योंकि वो अप्रोप्रिएट कर लिया गया था वो आंदोलन को। लेकिन इनिशियली ये विमेन का आंदोलन था। अब वापस से जो हम लोग जो जागरूक लोग हैं वो मैं इसमें फेमिनिज्म की बात नहीं करूंगी। मैं ये कहूंगी कि जिसने किया उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। डेलिबरेटली जो महिला विमेन लीडर्स हैं उनका दमन किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, ताकि जो है वो पेट्रियार्कल सिस्टम जो बहुत स्ट्रांग है, जो चीजों को आगे नहीं आने देता, वो इन्हें दबाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेन हैं जिन्होंने ये जो है गौरा देवी को वापस पहचान दिलाने की कोशिश की,
और जो है तो ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन एक महिला ने शुरू किया, किसान आंदोलन भी तब तेजी पकड़ी जब महिलाएं आई, उत्तराखंड आंदोलन ने भी तब तेजी पकड़ी जब महिलाएं आई, तो हम उनका कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते। लेकिन खैर ये मूवमेंट्स कल्मिनेट नहीं हुए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी ग्रीन पार्टीज का, कि दुनिया में शायद 104 105 जो है ग्रीन पार्टीज हैं, जिसमें जो उसका बॉडी है ग्लोबल, वो ग्लोबल ग्रीन्स है। और इसमें फिर 4 फेडरेशंस हैं। एशिया पैसिफिक ग्रीन फेडरेशन जो हमारा कंट्री है वो एशिया पैसिफिक ग्रीन फेडरेशन में आता है। और जो अमेरिकाज हैं नॉर्थ एंड साउथ, वो फेडरेशन ऑफ ग्रीन पार्टीज ऑफ द अमेरिका में आते हैं। और यूरोप की सारी ग्रीन पार्टीज जो हैं यूरोपियन ग्रीन फेडरेशन में, और कनाडा साथ में है। और यहाँ पे अफ्रीकन ग्रीन पार्टीज हैं। और एशिया पैसिफिक में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्लियामेंट में है। बाकी जगह सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जापान में जो है वो लोकल लेवल पर वो लोग उनके जो है कैंडिडेट्स जिन्होंने विन किया है। और अफ्रीका में भी शायद एक आधा है। तो ऐसा इसीलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। भले ही मुझे ये काम करते करते 9 साल हो गए, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि चेंज जरूर आएगा, क्योंकि इन सब इन ऐसे एक्टिविज्म को, ऐसे मूवमेंट को टाइम चाहिए होता है। लोगों को समझने के लिए, विश्वास लाने के लिए समय चाहिए। अभी ग्लोबल ग्रीन्स का जो चार्टर है उसका 6 प्रिंसिपल्स हैं ग्रीन पॉलिटिक्स के। तो उसमें ये 6 प्रिंसिपल्स हम इन्हें पिलर्स भी कहते हैं, जिस पर जो है ग्रीन पॉलिटिक्स खड़ी है। तो यहाँ पर हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, और यहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। जब अभी हम बात करते हैं कि जो अग्निपथ जो स्कीम लेके आई है सरकार, वो जनता को पसंद नहीं है। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि वो जनता अगर उसे पसंद नहीं करती, रिजेक्ट करती है, या हम जो है वो 3 लॉज, फार्म 3 लॉज की बात करते हैं, वो भी जनता ने रिजेक्ट किया। तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की अगर जनता के लिए चीजें हैं और जनता पसंद नहीं करती है, तो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन वो पार्टिसिपेशन नहीं है, वो अपनी तरफ से लाते हैं और उसको थोप देते हैं जनता पे। दूसरा नॉन वायलेंस, वो जो है, और रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में जो है विमेन पार्टिसिपेशन आता है। और इकोलॉजिकल विजडम, सस्टेनेबिलिटी। तो ये 6 जो हैं प्रिंसिपल्स हैं, पिलर्स हैं ग्रीन पॉलिटिक्स के। और ये बेसिक पिलर्स हमारे देश में हम पहले से ही बात करते आए हैं। और अगर देखा जाए तो गांधी जी फिर ग्रीन थे, जिन्होंने जो है सोशल जस्टिस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो उन्होंने बोला कि ग्राम स्वराज जो है, गांव तक जो है हर एक का अपना इंडिपेंडेंट स्वराज हो, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। उन्होंने हमेशा जो है अलग धर्म हो, जाति हो, उन सब पर जो है अपना समानता की बात की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन पार्टी के बारे में बताना चाहूंगी कि इंडिया ग्रीन्स पार्टी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं पार्टी के बारे में बहुत बताऊंगी तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। मैं वन ऑफ द को फाउंडर हैं। हमने बहुत सारे राज्यों में घूमे। उसी टूर में हमारी एक बार जब हम गुजरात के दौरे पे थे और अहमदाबाद के, तो हमें मानसी से मुलाकात हुई, और तब से हमने मानसी को छोड़ा नहीं है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो अभी तक हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी खामियां बताई हैं, तो ये वो गैप्स को पूरा कर सकती है ग्रीन पार्टी। वहां पर जो है वोटर्स की बात सुनी जा सकती है, पॉलिसीज पर जो है उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे जो सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा कि महिलाओं की सुनी जाती है, महिलाओं को जो है पार्टी इनके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व किया जाता है। शुरू में हो सकता है सेरेमोनियल हो, लेकिन आगे चल के फिर ट्रेन भी किया जाता है, और वो ट्रेनिंग इस हद तक होती है कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दैट। और लीडर्स को भी सेंसिटाइज किया जाता है, और जो है एक कमिटमेंट है जेंडर इक्विटी का, और वो हमारे मैनिफेस्टो में और कॉन्स्टिट्यूशन में है। लागू होते होते समय लगता है, लेकिन होगा, जरूर होगा, क्योंकि
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसको बनने में समय लगा, तो इसीलिए सभी चीजों के लिए समय लगता है। अगर हम कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली लगे रहते हैं तो उसके रिजल्ट्स जरूर आते हैं। विमेन क्यों चाहिए हमें रिप्रेजेंटेशन में? ये क्योंकि मैं जेंडर इक्विटी ट्रेनर हूँ और मेरा काम जेंडर इक्विटी पे ही ज्यादा है, तो मुझे ये जो है इस पर बात करना बहुत अच्छा लगता है कि लो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल लीडर्स का। आप देखेंगे कि 9%, तो अगर 9% है तो बाकी कौन है? 91 मेल हैं, ये 7%। तो कभी कभी ऐसा लगता है इन सबको हटा के अगर केवल विमेन की फोटो लगा दें तो कैसा लगेगा? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उन्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और जो रिजर्वेशन है 33% जो पंचायत है विमेन में, वो भी कहीं कहीं पर जो है नाम मात्र के लिए है। उसमें भी जो है उनके जो पति होते हैं या दूसरे फैमिली हेड होते हैं वो जो है रन करते हैं बिहाइंड द सीन। इवन कहीं कहीं तो ये भी आलम है कि वो फोटो उनकी भी होती है और कहते हैं इनकी पत्नी, इनकी बेटी, इनकी बहू, इनका वो, और आप इन्हें वोट दें। तो पूरा वहां पर भी हम देखेंगे कि वो विमेन को जो 33% का जो रिजर्वेशन है उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और जो विमेन वास्तव में जिनके पास लीडरशिप है उनको जो है उनका दमन किया जाता है। तो ये, और 14% जो है पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं लाने दिया जा रहा है, वो बिल को रोक के रखा हुआ है, क्योंकि अगर विमेन 50% हो जाएंगी तो फिर ये दुनिया में आग कैसे लगाएंगे। तो ये हाल है। आप देखेंगे कि हमारे देश का हाल इतना बुरा है कि हम नेपाल से भी पीछे हैं अपने नेबर्स। शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, तो हम नेपाल से पीछे हैं। नेपाल में 32% है और इंडिया में 11% है। सच अ शेम। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दुनिया में विमेन रिप्रेजेंटेशन फास्ट है, इंडिया का आप हाल देख लीजिए कहाँ पे है। और इसी तरीके से लोकसभा का आप देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है, पहले 6.5% था 2004 में और 2014 में 8.1 है, तो फर्क पड़ा है। तो व्हाई वी नीड मोर वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स शेयर किए हैं। रिसेंटली मुझे मौका मिला के शैलजा जी को मिलने का, और उन्हें जो है सम्मानित किया। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने उन्हें जो है सिलेक्ट किया गया अवार्ड के लिए। तो उन्होंने काम बहुत अच्छा किया और यूएन ने भी उन्हें जो है एज ए हेल्थ मिनिस्टर जो है ऑनर किया। लेकिन उनके जो अभी जब रिसेंटली वो जीती थी तो उन्हें जो है उस पोजीशन से हटा दिया गया। कहाँ खतरा महसूस करते हैं ये लोग, ये विमेन को जो है हटा देते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो ये जर्मनी के प्रेसिडेंट है वो अब हैं नहीं। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन, ये ग्रीन पार्टी के साथ में जो है कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई है इन्होंने। और वहाँ पर हमारी इनके कैबिनेट में इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत कम है विमेन, लेकिन ग्रीन पार्टी की 50 to 60% विमेन जो है पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो उससे जो है वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक माहौल बनता है कि अरे हमारे पास विमेन कम है, इनके पास विमेन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, और ये ताइवान की हैं। और हम ये भी देखेंगे कि ये विमेन लीडर्स ने कोरोना वायरस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया इनके काउंटर पार्ट के मुताबिक। तो इसलिए हमें विमेन की जरूरत है। और क्लियर कट बात भी है कि जब हम कहते हैं कि हमारा जो है आधा आसमान है और आधी धरती है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी 50% होना चाहिए, क्लियर कट। सो जेंडर इक्विटी इज अ रिस्पॉन्स टू पावर इम्बैलेंस। तो हम देखेंगे कि बहुत सारा जो पावर इम्बैलेंस है वो जेंडर इक्विटी एक उसका पार्ट है। कॉलोनियल जो सिस्टम था उससे ही जो है ये जेंडर इनइक्वालिटी आई है। और जब पावर इम्बैलेंस को ठीक करना है तो जेंडर इक्विटी बहुत मस्ट है। तो ये अपना सपना है कि महिलाएं जो है पार्लियामेंट में पहुंचे 50%। थैंक यू वेरी मच। मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया। आई एम वेरी मच particular about timing. I know. No, it was absolutely perfect on time, and thank you Anita for the wonderful presentation. Important बात ये है जो हम क्योंकि आप environment की बात already कर रही हैं जिसमें कि water embedded है, and the reason why I was very keen that you give this talk to us.
जैसे वाटर सेक्टर में हम देखते हैं, हम पॉलिटिक्स को भी साथ अगर हटा दें और खाली वाटर सेक्टर में भी देखें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड में आज की तारीख में 1 in 5 इज अ वुमन। सो ऑलरेडी मतलब 20% में हम बोलेंगे पॉलिटिक्स से तो एटलीस्ट बेटर है वाटर में, बट वो 1 in 5 इंडिया में आके और नीचे हो जाता है इन वाटर सेक्टर पर्टिकुलरली। वहां से लेके हम वी वांट टू रीच अ सिचुएशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन लीडरशिप व्हिच इज द वेरी एसेंस ऑफ विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल, जो वुमेन इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एजेंडा में है। तो हम ये एक लंबे सफर की बात कर रहे हैं जिसमें हमको चलना है साथ में, बट इसमें चलने के लिए जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो कैच यहाँ पे आता है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड वुमेन इन ऑल सेक्टर्स, you know, women in scientific community, women in entrepreneurship community, women in grassroots who are doing everyday activity with local people. From here, this little jump to get into active politics is definitely not easy, right? So I mean, I am keen to understand from you, because you yourself was in academics, right? From there you took this jump to take a conscious decision that because you were already contributing to the society, you know, but then how do you see that and why do you think that it is important now, especially with climate change and all kinds of pandemics, and India performing the lowest in environmental performance index with the recent study, how can we really convince more women to be more active publicly, if I don't use the word politically, but more in the public domain, you know, that they are more active, they are more vocal, they are able to present themselves. Besides, they are doing routine activity as scientists, teachers, scholars, lawyers, you know, doctors who are environmentally inclined. How do we really convince them that they have to walk this extra step to really bring a change in the society? I know you are doing a lot of training programs, so how can you break that jinx in them? I mean, you know, you are also trying to convince me for quite some time and I'm still not convinced. I will use my example. How do you convince them to take that extra step? You know, because they have already home and then office. Now politics becomes an additional. So just curious, how did you do that? Actually, yeah, मुझे पहले बोलना नहीं आता था पॉलिटिक्स पर, और जब मुझे बोला जाता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्या बोलूंगी, मुझे क्या आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना विमेन की, कि मुझे क्या आता है, यू नो, विमेन आर क्रिएटर, वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है, बट उसको ये समझाया गया है कि आप वीक हो, आप कमजोर हो, और आपको संभालने के लिए कुछ पुरुष चाहिए, 5 अब्बा, फादर इन लॉ, हस्बैंड, सन, ग्रैंडसन, तो वो सब आप लोगों को चाहिए क्योंकि आप बहुत कमजोर हो। जिस दिन आप ये रियलाइज कर जाओगे, आप जो कस्तूरी मृग होता है ना, वो पूरे जंगल में जो है वो खुशबू कस्तूरी की ढूंढने जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे नाभि से ही वो खुशबू है। तो जिस दिन महिलाएं ये रियलाइज कर जाएंगी कि मैं शक्ति रूपेण हूं, मुझ में शक्ति है, उस दिन वो कर डालेगी, क्योंकि उसको तो आदत है करने की। और जब हम विमेन ट्रेनिंग देते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि काम उस विमेन को दो जो ऑलरेडी बहुत काम कर रही है, क्योंकि वही कर सकती है। हम ये बोलते हैं फ्री विमेन को मत देना काम, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको ये समझाया गया कि आप कमजोर हो, आप वीक हो। और मैं जब ग्रीन पॉलिटिक्स में आई तो मेरा एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि ट्रेनिंग्स के बिना हम किसी भी सिस्टम को खड़ा नहीं कर सकते हैं, उसके पैरेलली एक ट्रेनिंग सिस्टम खड़ा होना चाहिए। सो मैंने जो है इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या ला सकते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू इट वर्क लाइक मिरेकल। जो यूथ हैं वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी यूथ के बीच, जबकि यूथ तो बहुत अवेयर है, बहुत अवेकन है, उनको बहुत जल्दी वो समझ भी जाते हैं बात को। लेकिन हम लोगों को इसलिए मेहनत नहीं लगी कि हमने जो है विमेन को अलग अलग तरीके से ट्रेन किया। हमने मेंटरिंग प्रोग्राम दिया 1 साल का, जिसमें आप जो है
ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब हम विमेन को स्टार्ट करते हैं ना एंड वी से कि आपके गोल्स क्या हैं, तो वो अपने बिजनेस, जॉब, ये सब का लेके आती है, वो पॉलिटिक्स का नहीं लेके आती है। लेकिन जब ओवर द टाइम 6 महीने हो जाते हैं, फिर सो हम कहते हैं ओके, रिविजिट योर गोल्स, यू कैन रिविजिट योर गोल्स, तो आप चेंज करो एंड देन आप अपने मेंटोर के साथ में 6 महीना 1 साल बिना जो है फॉर्मल जो है हमारा प्रोग्राम के थ्रू आप रह सकते हैं। एंड जो हमारे मेंटोर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कि वो उन्हें गाइड करते हैं, और हमारे मेंटोर्स जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। सो इतने हाईली क्वालिफाइड मेंटोर्स हैं कि वो मेंटी को समझते हैं कि अभी ये समझ नहीं रहे, लेकिन किस तरीके से उनको जो है ना वो चेंज करते हैं कि वो रियलाइज करते हैं। दूसरा हमारा जो जेंडर इक्विटी ट्रेनिंग है, कि पहले हमने जेंडर इक्विटी पायलट प्रोजेक्ट हमने इंडिया से ही शुरू किया था, बिकॉज मेरा मानना था कि बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता। मैं लाख समझाऊं कि आप आओ, लेकिन नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप जेंडर इक्विटी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो आपको जो है ना वो ज्वाला जग जाएगी कि नहीं, मुझे करना है। फिर हम ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम लेके आए, हमने ट्रेनर्स को ट्रेन किया, और उसके बाद में उन ट्रेनर्स को ट्रेन किया कि अब आप ट्रेनिंग दो, जिनको हमने ट्रेन किया अब उनको बोला उनको ट्रेनिंग दो। तो इस तरीके से हम फिर पीछे मॉनिटर करने लगे और आगे ट्रेनर्स ट्रेन करने लगे। गलतियां करी, कोई बात नहीं, सीखते तभी हैं जब गलतियां करते हैं। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस पैरेलली, और जो वेबिनार और सेमिनार्स का जो मेरा एक आइडिया था वो बहुत वर्क नहीं किया, क्योंकि होता क्या है कि इसमें कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं होती है और किसी का कमिटमेंट नहीं होता है। कोई एक वेबिनार में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। लेकिन हमने उसको फिर सिलेबस बनाया मेंटोरिंग प्रोग्राम का, कि हमने 3-4 जो है वेबिनार्स का जो है वो कंपाइल किया, और हमने कहा कि ये आपके कोर्स का पार्ट है और आपने ये वेबिनार्स देखने हैं, और उसके बाद में आपने टेक अवे क्या था आपका, वो नोट्स अपने मेंटोर के साथ में शेयर करना है। तो वो बहुत अच्छे से काम किया। और उसके बाद जो है हैंड होल्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंड होल्डिंग, जैसे मैं 5-6 विमेन का हैंड होल्ड करती हूँ, फिर उन्हें बोलती हूँ आप आगे हैंड होल्डिंग करिए, क्योंकि विमेन ना वो एकदम लॉस्ट है। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ क्योंकि मेरी पकड़ ही उस पर है। तो जब विमेन को जो है, पहली बात तो आप उनसे बोलिए कि आप पॉलिटिक्स में है, तो बोले नो नो नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे क्या करना है, पॉलिटिक्स गंदा है, और मुझे क्या करना, मुझे कुछ आता नहीं है पॉलिटिक्स में। बट हमने ये नहीं समझा, मेरी ये सारे एक्टिविस्ट से शिकायत भी है, जब लोग ये कहते हैं कि नहीं हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम उन्हें बाहर से डंडा दिखाते रहेंगे। लेकिन दुनिया भर के जो ग्रीन पार्टीज हैं वहां सारे एक्टिविस्ट अंदर गए, वो पार्लियामेंटेरियंस बने, वो डिसीजन मेकिंग में गए, पॉलिसी मेकिंग में गए। अगर यहाँ से आप डंडा दिखा दिखा के करें तो आज देश का हाल ये नहीं होता जो आज देश का हाल बन गया है, कि हम जो है सब कुछ जो है हमने कॉर्पोरेट्स के हाथों सौंप दिया। तो विमेन को, उनको जब हम मेंटरिंग प्रोग्राम में लाते हैं, जेंडर इक्विटी ट्रेनिंग में लाते हैं, हम कोशिश भी यही करते हैं कि वही विमेन मेंटरिंग प्रोग्राम करे और वही विमेन जेंडर इक्विटी करे। शुरू में वो 1-2 साल कंफ्यूज भी होते हैं, ये क्या है और ये क्या है, तो लेकिन ओवर द टाइम समझने लगती हैं, और जब ट्रेनिंग देती हैं तो वो समझ जाती हैं, और फिर उसके बाद में वो दूसरों के हैंड होल्डिंग करती हैं, 2-3 मिलके एक दूसरे को समझाती हैं, सिखाती हैं। बहुत शुरू में बहुत एनर्जी जाती है, लेकिन दिस वर्क्स लाइक मिरेकल, एंड आई एम डैम श्योर कि ये चीजें बदलेंगी। और अभी हम एक विमेन्स का नेटवर्क बना रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, और जहाँ पे जो है विमेन जो है विमेन इश्यूज पर पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग और जो भी पॉसिबल ट्रेनिंग्स हैं वो जो है हम यहाँ पे कोर्स भी लेके आएंगे 6 महीने का, साल भर का, तो अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ में आएंगे। लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि हम विमेन को सपोर्ट करें। विमेन, जो लोग बोलते हैं ना कि हम एम्पावर करेंगे, तो विमेन आर एम्पावर्ड, दे डोंट नीड टू बी एम्पावर्ड, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, हैंड होल्डिंग करनी है। सो दे नो वेरी वेल, दे आर क्रिएटर्स। एक कॉमन नैरेटिव आता है व्हेन वी टॉक टू बिजी प्रोफेशनल वुमेन, और वो नैरेटिव आता है वी हैव ऑलरेडी टू मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, we cannot take extra responsibility. And I give example from the network which we are trying to run now here in the Wiki Water Resource Council, which is actually particularly leadership platform, where one woman is supposed to actually increase the network and bring 10 more women water leaders. But somehow
And this is also seen in everyday life, as you were mentioning about politics or doing something extra. Do you think that we are actually locking ourselves into exploring further avenues to do some social engagement or other engagement because we think that our plates are full, or we have too many things to do, and whatever is happening is in the society is none of our business? Why do women constantly are in that trap, you know, that politics is ganda, but then who is going to clean it? And we find that it is not my duty to clean it because I am busy in doing other things. How do you get that out of women's head, that if we want a cleaner society, cleaner politics is equally required, you know? How do we change the narrative for women that, I mean, when they say that they are too busy to do any other activities? या सो मैं यही कहूंगी कि दो तीन बातें हैं कि एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, यू नो, इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज ब्लिस. हाँ, इग्नोरेंट है, और अगर इग्नोरेंस है तो हमें उन्हें अवेयर करना है कि इस तरीके का जो है हम इम्पैक्ट होते हैं डे टू डे. हम जब ये कहते हैं कि नहीं मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, पॉलिटिक्स अपने आप में पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो हाँ, तो हम लोग हर कोई, अगर हमारे घर में साफ पानी नहीं आ रहा है या कम पानी आ रहा है, so that is a political issue. yes. तो हम जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो भी प्रॉब्लम है, या हम हॉस्पिटल में, जैसे मेरी अभी एक फ्रेंड गई है चंडीगढ़, पीजीआई गई है, और वो कहती कि इतनी लंबी लाइन है, 2 घंटे के लिए वो जो है वो विंडो खुलती है, और उसके बाद में पहले वो मेडिसिन में जाओ, उसके बाद स्पेशलिस्ट के बाद रेफर करें. तो ये पॉलिटिकल इश्यू है, बट पीपल थिंक मेरा भाग्य खराब है, मैं क्या करूं. तो वो हमको अवेयर होना पड़ेगा, अवेकन करना पड़ेगा, और मैंने वही किया है. मैंने डे टू डे लोगों को यही बोला है कि पॉलिटिक्स जो है हम सबको इफेक्ट करती है. आज अगर बैंक प्राइवेटाइज हुए, या जो है कोरोना आया, या फिर जो है नोटबंदी हुई, या फिर जो भी प्रॉब्लम, ये सारे पॉलिटिकल हैं, लेकिन हम इनको पॉलिटिकल मानना ही नहीं चाहते, तो वो हमारी प्रॉब्लम है. और तीसरा जो है टाइम मैनेजमेंट का, मैंने देखा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है. जब मेंटोरिंग प्रोग्राम, इवन मेरा भी इश्यू रहा होगा कभी कि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, तो टाइम मैनेजमेंट सीखना. और मैंने जैसे कहा कि जब हम अपना जो नेटवर्क हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो हम इस तरीके के जो है प्रोग्राम्स रखेंगे जिसमें विमेन को सपोर्ट मिले, क्योंकि अब जो चीज आपके नॉलेज में ही नहीं है तो आप कैसे जानोगे, आपको मालूम ही नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज है. अगर कोई मुझे पूछता है कि मुझे कितना देना है विमेन्स नेटवर्क को समय, तो मैं कहती 15 मिनट्स, तो कहते 15 मिनट्स हम कर सकते हैं. तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना. by the way, I often receive the same question for Vicky Water Resource Council कि मुझे समय कितना देना है. So they are constantly in that mental block कि ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं करना पड़ेगा अगर कोई भी नेटवर्क या प्लेटफॉर्म में. How do you really get over it? It's a long conversation. We can continue doing that conversation. But important for me was to get you here to understand how to take that extra step. We all are doing our work in our own merits. And in some way or the other, probably doing something for the society. But there is a valid point that if you want to change something in the society, you have to be in the decision-making position, and that can only come through either bureaucracy or politics, you know. So we can keep talking about it, Anita. I think I will now hand it over to Vandana to ask last question on future path to green politics, or how we can convince more women to be in the decision-making, or if you have any other questions. Vandana, over to you. Thank you, Anita. Thank you so much, Mansi, and thank you so much, Anita ji. I think you have given such a broad spectrum for us to be intrigued to ask you more questions. But I know that there is a paucity of time also alongside. We'll definitely come back to you. Just maybe you can give a closing remark for our audience in terms of definitely these young professionals
who may not take political positions for a full-time role, but what they can do individually at their level, be it men or women, how they can from their end make sure that there is more women participation. Maybe you can give them some quick 2 or 3 key messages that they should keep with themselves as a closing remark. हाँ, सो मैं विमेन को यही कहूंगी कि वो अपने चूल्हे चौके से और जॉब से बाहर निकलकर एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाएं, और जो 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 मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो विमेन को एज अ टूल यूज करती हैं, और उन्हें जो है वो बराबर का सम्मान नहीं मिलता है, और आप देख सकते हैं वो हर जगह है। तो महिलाओं को जो है वो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसके जो वो दिखाते हैं छलावा है, उससे बाहर निकलना होगा। इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं ग्रीन पॉलिटिक्स को लेके वो पढ़ें, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं बदल सकते हैं। पॉलिटिक्स समझना और सही पॉलिटिक्स पर समझना, कभी कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। लोगों जैसे अभी हम कहेंगे कि जो अग्निपथ और उसके अग्निवीर की जो स्कीम है वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जैसे बड़ी मेहरबानी हो रही है हमारे युवाओं पे, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि 17.5 साल का बच्चा अगर आप जो है भर्ती करेंगे और उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, और क्या वो ट्रॉमा में चला जाएगा उतनी छोटी उम्र में। तो ये सब चीजें हमको समझनी होंगी। तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि वो पढ़ें, ग्रीन पॉलिटिक्स को पढ़ें, संपर्क करें, मानसी से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें और जुड़ें। और जो मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेसी फॉर वुमेन जो हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उससे जुड़ें, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन विमेन को पॉलिटिक्स के लिए ट्रेन करना और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सबसे पहले जब हम समझेंगे तभी तो हम करेंगे। तो उसको जो है उससे जुड़ें। और मानसी जी भी हमारे साथ में है, तो उससे हम कहेंगे कि हम उसमें ट्रेनिंग देंगे। बेसिकली जो मानसी कह रही है कि हमारा पैरेलल एक ट्रेनिंग जो है स्ट्रक्चर होगा जो रेगुलर विमेन को इंडिया में ट्रेनिंग देगा। अभी जो पिछली मैंने जो ट्रेनिंग्स की बात की वो हमारी एशिया पैसिफिक रीजन में है, जो एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट रीजन में है, लेकिन ये जो हम करेंगे टोटली इंडिया के लिए करेंगे। तो मेरा तो इतना ही कहना है, बाकी तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी फिर। थैंक यू सो वेरी मच अनीता जी, इतना अच्छा विवरण फ्री पॉलिटिक्स को लेकर के मैंने पर्सनली ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है। एंड आई एम श्योर मुझे ऑलरेडी कुछ चैट मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इतना कॉन्क्रीट कंटेंट है that everybody would like to know more. So definitely जब हम इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करेंगे तो hopefully you will receive many more queries, and we really hope, wish and pray that each one of the audience members who are going to listen to this conversation will certainly take some steps to actually reach out to you and join more political standpoint से green parties को join करें, vote करें, उनके लिए advocacy करें individual and say. So with these wishes, I would like to once again thank you and all the audience people who have joined us, especially Mansi and Harshita for steering the session as well alongside, and Anindita for joining us. We hope to see our audience next week with yet another passionate worker. We'll keep our audiences posted through our social media handles as to who will be joining us. We are maintaining a little bit of suspense this week. Let's see how we take this forward. Yeah. Thank you so very much, all of you, for joining me. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. See you. Bye bye. Take care.